Hello students, welcome to this channel. Today we are going to read past perfect tense. Yesterday in this last video we have read present perfect tense. Now you will see the next chapter past perfect tense here. Okay students, at first we will discuss what is the recognition of past perfect tense. In the past perfect tense, students, you will see that there will be two type of sentence. In the first sentence, there will be only one clause, and in the second type of sentence, there will be two type of sentence, means there will be two clause. Okay, and at that time you will use past perfect tense. In that clause the events is happening earlier. In that clause you will use past perfect tense, and the events that is happening just after that earlier event, you will convert that clause into simple past tense. Okay, here at first you see the rule of this tense. Rule. What is the rule of this tense? First rule is subject plus had plus verb third plus object plus other. Students, in the first rule, at first you will write meaning of subject, then had. With each subject you will use had, and then verb third is compulsory, and then object, and in the last you will write others. Okay, now you see the second rule. Past perfect tense plus before plus past indefinite, that is called simple past. That is called simple past. Means in that condition there is two clause. At that the event that is happening earlier, you will convert into past perfect tense, and in the middle you will write before or when, and then in the last simple past. Okay. Now you see the examples related to these rules. She had gone Mumbai. She had gone Mumbai. She is subject, had is helping verb, and gone verb third, and then Mumbai is object here. Okay, she had gone Mumbai. They had missed the train. They had missed the train. Subject they plus helping verb had plus missed verb third form plus object train. They had missed the train. वे train miss कर चुके थे. Okay. So these are the examples for past perfect tense indicated to the first rule. Okay. Now you also see I had written a letter to my father. I had written a letter to my father. So these all three examples are related to
the first rule subject plus head plus verb third plus object plus other means with a single clause. Okay, now you see to second rule here. For second rule you see the examples for second rule you see here. In that sentence where two events are happening, but one event happens earlier and the second events happen just after it. Like that examples बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल है. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. स्टूडेंट आप समझेंगे इसमें कि कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर आ रहा है कि पहले जो रोगी है वो पहले उसकी डेथ हो रही है, आपको समझना है. तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पहले कौन सा काम हो रहा है, जो अर्लियर इवेंट है वो क्या है, रोगी मर चुका था, यानी रोगी की डेथ पहले हो रही है और डॉक्टर उसके जस्ट बाद आ रहा है. मीन्स जो काम फर्स्ट हो रहा है उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. ओके, और फिर जो जस्ट उसके बाद वाला इवेंट है उसको सिंपल पास्ट में. तो रोगी मर चुका था ऐसे लिखेंगे. द रोगी यानी पेशेंट हो गया सब्जेक्ट और हेड इसके बाद जस्ट बाद हेड. वर्ब क्या है, मरना, यानी डाइड हो जाएगा. थर्ड फॉर्म डाइड, डाइड. ओके, द पेशेंट है डाइड. इसके बाद सब बिफोर को ले लेंगे. बिफोर. ओके, अब हमारा जो उसके बाद का इवेंट क्या है, डॉक्टर के आने से, तो उसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में. और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो डॉक्टर यानी द डॉक्टर और वर्ब का सेकेंड आना यानी कम का सेकेंड फॉर्म केम. तो द डॉक्टर केम. बिफोर द डॉक्टर केम. क्या हो गया इसका एग्जाम्पल. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से. फर्स्ट क्लास क्या है, जो काम पहले हो रहा है यानी पेशेंट की डेथ हो रही है. द पेशेंट हैड डाइड सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है. पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, तो उसके बाद बीच में हमारा जो है बिफोर आ गया और फिर जो दूसरा क्लॉज है, दूसरी क्लॉज को हम बनाएंगे. दूसरा जो इवेंट बाद में हैपन हो रहा है डॉक्टर के आने से, उसमें सब सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी हो गया आपका सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ओके, लाइक दैट. सेकेंड एग्जाम्पल यू सी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. ठीक है, दो क्लॉज यहाँ पे है. पहला क्लॉज क्या है, मेरे स्टेशन जाने से, तो मेरा स्टेशन जाना है फर्स्ट हो गया क्लॉज, और दूसरा ट्रेन जा चुकी थी ये सेकेंड क्लॉज हो गया. ओके, अर्लियर इवेंट क्या हो रहा है, ट्रेन जा चुकी थी, यानी पहले ट्रेन जा चुकी थी तब मैं पहुँचा, यानी अर्लियर इवेंट क्या है, ट्रेन जा चुकी थी. तो to that event you will convert in past perfect tense. Okay, and just the remaining portion will be converted into simple past. Okay, now you see ट्रेन जा चुकी थी पास्ट परफेक्ट में आप बनाएंगे यानी द ट्रेन हैड गॉन. ओके, द ट्रेन हैड गॉन. द ट्रेन हैड गॉन. फिर बिफोर सेकेंड क्लास क्या बोलता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी आई सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब. आई और उसके बाद जस्ट पहुंचने यानी रीच्ड. आई रीच्ड स्टेशन. आई रीच्ड स्टेशन. आई रीच्ड स्टेशन. Okay students, so like that you will convert it in simple past and past perfect tense. You see more examples here.
एक और रूल इसमें होता है, जैसे कि अगर सेंटेंस आ गया कि जब से स्टार्टिंग सेंटेंस का रहेगा, जब करके, जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, व्हेन से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो अर्लियर क्लॉज है और जो अर्लियर क्लॉज है उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी इस पास्ट परफेक्ट का यूज हम बाद में करेंगे और सिंपल पास्ट का यूज हम पहले करेंगे। सेंटेंस आपका क्या है कि जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, अक्सर ये आपके और इससे रिलेटेड एग्जाम में जो है टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन करने में डिफ़िकल्टी फेस होता है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, यू कैन रिमेंबर इट कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे और जो काम बाद में हुआ है उस काम को हम पहले सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे और जो काम पहले हुआ है, जो काम जब मैं स्कूल पहुंचा, तो स्कूल कौन पहुंचा और फिर घंटी बज चुकी थी, यानी पहले घंटी बजने वाला काम हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ उस क्लॉज को बाद में यहाँ पे राइट करेंगे। ध्यान से देखिए, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे बिफोर था तो बीच में हमने कॉमा नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे व्हेन का यूज सबसे पहले हो गया है। जब व्हेन का यूज सबसे पहले हो जाएगा तो कॉमा को हम बीच में लगा देंगे। ओके, तो व्हेन हो गया, व्हेन आई रीच्ड स्कूल घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड और रिंग रैंग रंग, यानी थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, रंग, रिंग रैंग रंग, द बेल है रंग। ओके, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल है रंग, दिस इज द ट्रांसलेशन। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। व्हेन वाले सेंटेंस में इस तरह से करेंगे, व्हेन को सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद से जस्ट आफ्टर सिंपल पास्ट, उसके बाद एक कॉमा बीच में आप ऐड करेंगे कि क्लॉज को चेंज करना है, तो दोनों क्लॉज को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यू विल ऐड अ कॉमा हियर एंड जस्ट आफ्टर यू विल कन्वर्ट द रिमेनिंग पोर्शन इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ in the negative sense you can also use it if the sentence is negative. If the sentence is negative at that time you will do it like that। ये जो I reached है इसको आप कर देंगे I didn't reach हो जाएगा, I didn't reach। ओके, I didn't reach हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जाएगा तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई नॉट हो जाएगा, डिड आई नॉट रीच हो जाएगा। तो लाइक दैट यू विल चेंज इट इन द वेरियस टाइप ऑफ वर्ड्स इन नेगेटिव सेंटेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस विद द एग्जांपल्स आई एक्सप्लेन यू। I hope this is clear to all of you and you will do more and more practice to make common this topic. This is your responsibility that how much you work at your home, how much you do practice at your home to make command. Okay.